मेरा फर्स्ट आईपीएल गेम था। मैं जब फर्स्ट टाइम बैटिंग को गया, आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट चेन्नई, माय डेब्यू गेम, और माही भाई पीछे थे, जड्डू भाई बॉल डाल रहे थे। यू वोंट बिलीव कि बैट कैसे पकड़ते मैं भूल गया था। मैं बैट नहीं पकड़ पा रहा था प्रॉपरली, मैं ग्रिप भूल गया था। 2 बॉल के लिए मेरे को याद ही नहीं था कि मैं बैट कैसे पकड़ूं। गेम के टुवर्ड्स अप्रोच बहुत डिफरेंट था। आई थिंक उस टाइम 100 बॉल में 100 रन करना माना जाता था बहुत बड़ी बात, बट अभी 100 बॉल में आप 100 करते हो तो सॉरी, इट्स नॉट अ बिग थिंग, या एनीवन कैन स्कोर इट। लोग सोचते थे कि गेम को आखिरी तक ले जाना है। आजकल लोग गेम सोचते हैं कि 20-25 ओवर में ही खत्म करना है वनडे का, 30 ओवर में। आई थिंक दैट डोमिनेंस हैज कम। पहले लोग प्रेशर सोक करने को देखते थे, अभी लोग कोशिश करते प्रेशर आगे वाले पे डालें। Hello there everyone. Sports are a big part of our culture and every sport has a journey and passion. Cricket, especially in our country, has delivered so many athletes and they have worked really hard to reach the top. Today I have with me Jitesh Sharma, who is a dynamic wicketkeeper batsman. He is known for his explosive batting as well as finishing abilities in the T20 cricket. He has made an impact with his game in the IPL as well as earned the honor to wear the Indian jersey. His journey is truly inspiring. So let's dive into this conversation. So, firstly, though, you were, into armed forces. You wanted to get into armed forces, Yes. but cricket later became your calling. कैसे था वो? क्या हुआ exactly? I think it was my friend's plan, because we were in the school and I always want to go in Air Force because my background is like my grandparents were in the army with Subhash Chandra Bose. Right. तो उस टाइम I always want to go in NDA. तो you know महाराष्ट्र में रूल है, if you play for the state you will get 4% extra. तो मैं स्कूल यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द टाइम स्टेट लेवल। तो मेरे दोस्तों ने सोचा कि लेट्स ट्राई क्रिकेट। तो वो मुझे पुश किया कि चल अपन स्कूल के ट्रायल्स देते हैं और देखते हैं कि कुछ अगर जुगाड़ होता है तो करते हैं। तो मैं स्कूल ट्रायल में गया और उन्होंने बोला कि वी नीड अ विकेट कीपर, हु इज़ विकेट कीपर। तो मैंने ऐसे मस्ती में हाथ खड़ा कर दिया, 2-3 लोगों ने ऐसे, और बट मैंने सबसे अच्छा बॉल पकड़ा उनमें से, मैंने बॉल अच्छा केप किया उस टाइम पे, एंड उस तरीके से मैं क्रिकेट में आ गया। दैट्स वाज माय जर्नी, एंड बट आई ऑलवेज स्टिल आई लव एयर फोर्सेस, आई स्टिल वांट टू गो इन एयर फोर्स। टॉकिंग अबाउट विकेट कीपिंग, चलो यस, ये सवाल का जवाब दे दो। यू एंजॉय बैटिंग मोर और विकेट कीपिंग? बैटिंग, यस बैटिंग। बाय बैटिंग? अब पता नहीं, बैटिंग में वो एक मींस फन है जब वो बॉल मिडल होता है बैट को, आई लव दैट फीलिंग। और जब मैं क्लियर बॉल 6 मारता हूँ तो वो बॉल देखता हूँ मैं जब ट्रैवल होने, वैसे मजा आता है। यस, ऐसे समथिंग, द एनर्जी इट गिव्स, गिव मी द सेंस ऑफ एग्रेशन, डोमिनेंस, वैसा फील होता है। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। नाउ यू आर नोन एज अ फिनिशर, राइट। it is high risk but also high reward. Yes. So what kind of mindset do you keep, as a finisher कि हाँ अभी करने वाला मैं, I'm the finisher, and what is the mindset that you keep? I think you have to keep everything very simple when you try to finish the game as a finisher. Right. You have to keep everything very simple, and you have to be very thick skinned. I think that position need a very thick skinned person, because that position from that position require a lot of mental strength and physical strength also. But if you have a very simple plan how to finish the games, right, I think you can be more successful, I think. But finisher is like not everyone can be a finisher. Yes, so how does it feel कि हाँ मैं finisher हूँ? क्या कैसे लगता है वो? I think I feel privileged. I feel grateful because I have chosen as a finisher in lots of franchisee and lots of my coaches. But I feel great. Basically I feel very great क्योंकि वो मुझे feel होता है कि I got that opportunity to be a hero in every game. Right. Yeah. Okay. So your international debut was in the 2022 Asian Games against Nepal. Yes. कैसा था? Like I'm representing my country for the very first time. वो moment कैसा था? Frankly speaking वो moment में मुझे feel ही नहीं हुआ, क्योंकि जब हम एशियन गेम्स गए ना उधर कैमरास थे ना कुछ मीडिया था, कुछ नहीं था। It was like I was feeling like I'm playing a local tournament. Sorry to say. हाँ, क्योंकि वहाँ कुछ एशियन गेम्स थे तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन थे कि आप ऐसा नहीं, सोशल मीडिया वो ये सब आप अलाउ नहीं था आपको। बट वेयरिंग दैट जर्सी ऑलवेज फील ग्रेट। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब
when I had that number and jersey with me, मैं कुछ सेकंड के लिए फ्लैशबैक्स में था. whatever hard work I have done, whatever sacrifice I have done, I feel very proud for myself and whatever sacrifice what I have done in my life, and means a great feeling I can't express basically, but I'm very proud of myself, I can say. Right. So you have started off, since you started with like ऐसे वो एक फन मोमेंट था कि हाँ मैंने हाथ ऊपर कर दिया, ऐसे कुछ है और स्पेशल मेमोरी फ्रॉम योर क्रिकेटिंग जर्नी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? इफ देयर आर 2-3 आल्सो वो भी चलेगा, ज़्यादा मेमोरीज होंगी तो भी चलेगा. इफ यू नो, मैं पहले ओपनर था और मिडल ऑर्डर बाद में, फिनिशर बाद में बना हूँ. आई थिंक 2021 तक मैं एज ओपन करता था विदर्भ स्टेट के लिए. पर मेरे कोच थे प्रीतम गंदे, तो उन्होंने ऐसी बैटिंग देखते देखते बोला मुझे तू मिडल ऑर्डर करेगा. दैट मोमेंट आल्सो आई रेज माय हैंड, आई सेड आई विल डू, लाइक गो विद द फ्लो. यस आई विल, जो है देखा जाएगा. या दैट्स माय माइंडसेट ऑल द टाइम. देखा जाएगा जो होगा. पर मैं ना नहीं कभी बोलता हूँ. लेट्स सी व्हाटएवर हैपन, लेट्स से यस एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. बट इज देयर लाइक एनी फन मेमोरी ऑफ इन योर क्रिकेटिंग जर्नी? बहुत होंगे मेरे को तो लग रहा है. ऐसे तो बहुत है, पर ऐसे मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा उसको. समथिंग दैट यू कैन टेल द ऑडियंस. आई कैन टेल यू द प्रेशर मोमेंट व्हिच आई फेल्ट, कि जब मेरा फर्स्ट आईपीएल गेम था, मैं जब फर्स्ट टाइम बैटिंग को गया, आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट चेन्नई, माय डेब्यू गेम, और माही भाई पीछे थे, जड्डू भाई बॉल डाल रहे थे. यू वोंट बिलीव कि बैट कैसे पकड़ते हो मैं भूल गया था. मैं बैट नहीं पकड़ पा रहा था प्रॉपरली, मैं ग्रिप भूल गया था. मैं 2 बॉल के लिए मेरे को याद ही नहीं था कि मैं बैट कैसे पकड़ूं. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. बट बाय गॉड ग्रेस मैंने खुद को एकदम होल्ड किया, वो नर्व्स प्रॉपरली होल्ड किया, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा एक्टिंग किया, थोड़ा रुका. एंड आफ्टर दैट आई मीन्स मैं थोड़ा फील हुआ कि मैं बैट पकड़ रहा हूँ. तब तक आई वाज नम. But there might be so many under pressure moments I'm pretty sure you faced. Can you tell us that how do you take yourself like हाँ मैं अभी under pressure हूँ but this is how I'm going to play? Like can you share that with us? I think if you focus on the present, if you focus on a situation, you read the situation, I think you won't feel any pressure that moment. Right. It's natural to feel pressure, but the reaction which you give to the pressure, it's in your control, what I feel. तो उस मोमेंट में आप कैसे रिएक्ट करते हो या एक्स्ट्रा सेकंड लेते हो, दैट्स एक डीप ब्रेथ लेते हो, तो वो आपको एक सेकंड, एक्स्ट्रा सेकंड, 2 सेकंड देता है सोचने के लिए कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, टू रीड द सिचुएशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन. आई थिंक दिस एक्स्ट्रा सेकंड व्हेन यू टेक, वो भले एक्टिंग से हो या ग्लव्स खोलने से हो, एक सिप पानी पीने से हो, या टेकिंग 4-5 seconds to go on the crease, वो seconds give you, I think, thought. Right. Again, you have been the captain so many times. I think we all would like to know that as a captain, how is the mindset? कैसे होता है कैप्टन का mindset? I think मैं जब भी कैप्टन हूँ तो मेरा mindset very simple होता है कि I will take the best decision कि जो टीम को जिताने के लिए हो सके. Obviously. It should not means कि वो पर्सनल के तरफ नहीं होना चाहिए. I will take the best decision what is required to win the game. अगर उस जगह ऐसा लगा कि ये मोमेंट में ये करना चाहिए तो मैं करता हूँ बिंदास. और आई थिंक डूइंग कैप्टनशिप, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल जॉब. आई फील कि यू हैव टू, क्योंकि आपके पास 10 अलग अलग पजल होते हैं, यू हैव टू जस्ट जॉइन दैट पजल एंड मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर. आई थिंक दैट्स माय ड्यूटी टू मैनेज ऑल द 10-15 प्लेयर्स. क्योंकि हर लड़का अलग होता है टीम में, उसका नेचर अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है, मेंटालिटी अलग होती है, सबका बिहेवियर अलग होता है. आई थिंक इट्स माय जॉब टू आइडेंटिफाई और उनको उनका बेस्ट सिचुएशन देने के लिए, उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ वो ज़्यादा ब्लूम कर सके, ज़्यादा एक्सप्लोर मीन्स अपना एक्सप्रेस कर सके गेम. आई थिंक दैट्स माय ड्यूटी. True, that is definitely true. Now tell us, this is a fun question, which is the toughest bowler you've ever come across? और मोमेंट भी बता दो क्या ऐसे हुआ है तो. आई थिंक देयर आर मेनी. आर्चर, ऐसे कुछ है मोमेंट जो बता जरा. जोफ्रा आर्चर, मैं मोहाली में खेल रहा था अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और मैंने आर्चर को 2-3 चौके फोर्स मार दिए थे. तो लियम लिविंगस्टोन बैटिंग कर रहे थे नॉन स्ट्राइक पे. तो लीवी मुझे बार बार बोल रहा था, आई कॉल हिम लीवी. तो मैंने लीवी को बोला, लीवी बोल रहा था कि उसको ज़्यादा मार मत, वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉलर ट्राई स्लोअर वंस. मुझे जोर से नहीं, स्लोअर वन डालने की कोशिश करते हैं कि मैं जोर के बॉल मार सकता हूँ स्लोअर वन के लिए. तो लीवी बोल रहा है वो एक बॉल एफर्ट वाला डालेगा जो माइट टच 150 समथिंग.
मैं बोल रहा था लिवी नो नो आई कैन हिट हिम, चिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हिट हिम। तो उस टाइम जब उसने 154 का डाला, 154 किलोमीटर का बॉल डाला, यू वोंट बिलीव कि मैं सिर्फ ऐसा खड़ा था, बॉल चला जा चुका था। तो लिवी सेड आई टोल्ड यू डोंट पोक हिम, डोंट पोक हिम। मैंने बताया था काइंड मोमेंट। ओके, ऑल्सो अभी क्रिकेट तो अभी बहुत चेंज हो गया जैसे, बट यू नो यू स्टार्टेड क्रिकेट बैक देन, हाँ कैसा था क्रिकेट तभी और हाउ व्हाट चेंजेस हैव यू सीन करंटली? आई थिंक क्रिकेट सेम ही था बट अप्रोच गेम के टूवर्ड्स अप्रोच बहुत डिफरेंट था। आई थिंक उस टाइम 100 बॉल 100 बॉल में 100 रन करना मीन्स माना जाता था बहुत बड़ी बात है। बट अभी 100 बॉल में आप 100 करते हो तो सॉरी, इट्स नॉट अ बिग थिंग एनीमोर, नॉट अ बिग थिंग, या एनीवन कैन स्कोर इट। दैट वाज द डिफरेंट। एंड आई थिंक जो मेंटेलिटी हुई है जब लोग सोचते थे कि गेम को आखिरी तक ले जाना है, आजकल लोग गेम सोचते हैं कि 20-25 ओवर में ही ख़त्म करना है वनडे का, 30 ओवर में। आई थिंक दैट डोमिनेंस हैज़ कम कि आज पहले लोग प्रेशर सोक करने को देखते थे, अभी लोग कोशिश करते हैं प्रेशर आगे वाले पे डालें। राइट, दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट चेंज आई थिंक इन क्रिकेट। Okay. Also, you know, you're one of the top 6 Indian cricketers with the highest strike rate. Yes. बट कभी कभी अगेन टॉकिंग अबाउट अंडर प्रेशर यू आर लाइक कि मेरे को ये मेंटेन करना है मेरा रैंकिंग, तो हैव यू कम अक्रॉस दैट थिंकिंग दैट ओ आई हैव टू मेंटेन माय रैंकिंग लाइक दिस, और यू आर जस्ट लाइक जो होगा देखा जाएगा? हाँ, मैं आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक वन डे एट अ टाइम। हाँ, आई डोंट टेक टेंशन कि आगे क्या होगा पीछे क्या क्या। आई थिंक वंस इज डन और आगे जो है आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दैट्स माई थिंकिंग। आई टेक वन डे एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम। ये जो आपने अभी स्टैट्स बताए मुझे आपसे ही पता चले अभी। हाँ, यस, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कितने रन किए नहीं। मेरा मेंटेलिटी हमेशा होता है कि आई विल टेक द डिसीजन बैटिंग करते वक्त, जो भी डिसीजन लूँ वो टीम को जिताने के लिए। दैट्स इज माई माइंड सेट ऑलवेज। मेरा बचपन से हमेशा, आपके पापा भी जानते हैं, तो मेरे कोच रह चुके हैं। यस, ही आल्सो नो दैट आई विल टेक द डिसीजन व्हाटएवर द डिसीजन। मैं अपने गेम के अगेंस्ट भी खेल सकता हूँ इफ टीम रिक्वायर्ड। तो दैट्स माय माइंडसेट ऑलवेज। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम इन द स्टैट्स। ओके, नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर प्री मैच माइंडसेट कि अभी मैं जा रहा हूँ, या प्री टॉस माइंडसेट, ऐसे कुछ बता सकते हो? मैं कम बात करने की कोशिश करता हूँ मैच के पहले। मैं नेटफ्लिक्स बहुत देखता हूँ, मूवीज बहुत देखता हूँ मैच के पहले। यस, टू डाइवर्ट योर माइंड, लाइक व्हाई? मीन्स पता नहीं, मैं इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने में पसंद करता हूँ। अच्छा। कि वो मूवीज़ देखता हूँ तो आई फील वेरी गुड। वो मैं क्योंकि वो स्टोरीज में पूरा घुस जाता, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें मेरा ध्यान नहीं रहता है। मीन्स मैच क्या है, क्या हो रहा है, वो पता नहीं। वाइल प्लेइंग तो नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते, पर जैसे आप ग्राउंड को जब जाते हो उसके पहले मैं दिन भर मूवी देखते रहता हूँ। पूल करूँगा, चिल करूँगा, एकदम रिलैक्स, जैसे आलसी आदमी जैसा लेटा रहूँगा एक गद्दे पे, हिलूंगा भी नहीं मैं। हाँ, ऐसा। But once I get entered, But is there like any reason? Because this is the first time I've heard any sports person, क्योंकि normally sports person बोलते हैं मैं ऐसा attitude रखता हूँ वैसा। This is the first time I've. Is there any particular reason why you do that? मैं सोचता हूँ कि मैच मेरा स्टार्ट होता है जब मैं रोप के अंदर आता हूँ, रोप के बाहर नहीं। मैं रोप, yes, I keep that my aggression, my feelings for the ground. ग्राउंड के बाहर मैं वो कुछ शो करने में बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक मैं मैचेस के पहले जब ग्राउंड पे जाता हूँ मैं बिलीव करता हूँ कि जितना मैं कंट्रोल रह सकूँ मेरे कंट्रोल में, उतना मैं क्लियरली गेम को अंडरस्टैंड कर पाऊँगा जब अंदर जाऊँ, और उतना क्लियर रह सकता हूँ हेडेड। और मैं क्लियर कब रहूँगा जब मेरे माइंड में कुछ ना हो, गेम के बारे में थॉट्स ना हो, कुछ ना हो। एक बेसिक आइडिया तो होता है आपको गेम के बारे में, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लैंक हेड जाऊँ, जितना ब्लैंक जा सकूँ, और वहाँ जाके स्टोरी लिखूँ फिर अंदर मैच में। But I'm gonna like call you like this unique mindset cricketer, since you have such a unique mindset towards everything. Yes. Can you tell those young bacha party जिनको you know they want to represent their country just like you did? Yes. What do you want to tell those bacha party? मैं दो तीन ही चीज़ें कहूँगा। आई थिंक enjoy your hard work, enjoy your process, because लोग मेहनत को enjoy नहीं करते, struggle को enjoy नहीं करते। And it's very tough to enjoy your struggle, but I will advise all the youngsters to enjoy their hard work and always believe in hopes and magic. They do happens. I can tell you, you have to always keep believe and have your own values in your life. Indeed. Because आपको जब वो values होते हैं तो you can't get distracted easily by anything if you have those values inside. Right. I think everything, do whatever you can do in your control.
don't worry about future or past. I think you can't control your past and future. Just enjoy your game and be humble. That's There's all. one more question. This personally I want to ask. Yes. Sir, if is it you or you can say someone else's name, सबसे ज़्यादा बाम्बू कोट से किसने खाया है? किसने खाया है? हाँ. किसी प्लेयर ने? या आपने? मैंने तो बहुत खाया है। मैंने तो बहुत खाया है बाम्बू। मैंने जिनका बाम्बू खाया है मीन्स वो है किरण पवार सर, जिनका खाया है, रिप्लाई नहीं किया है मैंने, पर मैंने मेरे को बहुत कोचेस ने बाम्बू दिया पर मैंने रिप्लाई किया है मैंने, पर किरण सर का प्यार से बाम्बू खाया है बहुत। वो तो उनका प्यार ही आता है when he says obviously for your good and he gives it out of love. Yes. किरण पवार, there are many coaches you can say that. फिर एक प्रीतम गंदे सर थे, उनका मैंने बहुत अच्छे से लिया। एक रंजीत पराड़कर करते हैं, वो जब भी देते हैं तो मैं उनका प्यार से गाली खाता हूँ, क्योंकि आई नो दे थिंक फॉर मी कि वो मेरे अच्छे के लिए सोचते हैं। तो ये 3-4 लोग हैं मेरे लाइफ में। बट दैट इज़ ऑनेस्टली अ गुड थिंग। जो आज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गलत वे में ले लेते हैं, they don't see the positive thing, like the positive thing that why the coach is saying that. You thankfully have taken it in a positive way. Yes, always. I always take everything in positive. I think I feel whatever happens is happening for your good. Good, exactly. Yes, that is my mindset. Yes. Yeah. Thank you so much. This was so amazing, chit-chatting with you, and we wish you best of luck for your future. Thank you so much. Thank you.